experience something yourself, you cannot pass on to others. You people might have seen Swamiji's movement of the tummy. I read it that Swamiji has bulging of tummy. He was not in that shape where he is today. So he has experienced himself this effect of yoga. And he was cured, and because of that he want to give it to the entire world. So with this brief introduction of Swamiji, please, one more sentence I want to speak over here. Swamiji is dedicated to conducting further research on yoga for the betterment of overall human health. He firmly believes that good health is the birthright of all human beings. Please join me in welcoming Swami Ramdev Maharaj Ji to this second to none in the world Cancer Center in Houston. Can I see a show of hands as how many of you understand Hindi? Thank you very much. Hopefully maybe I can learn some Hindi this evening. Let me make a little clarification about what Dr. Sen Pathak said. First, he is going to translate what Swamiji is going to say from Hindi to English. Then I'm going to attempt to translate that English into modern medicine, which we all can understand. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Tandy Anderson Cancer Center एक पूरी दुनिया का सबसे शीर्ष कैंसर हॉस्पिटल, और इसमें आज हम करेंगे संवाद कैंसर सहित वो कॉमन प्रॉब्लम्स जिनको अभी तक हम ये समझ रहे थे कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम से हम इनको कंट्रोल ही कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भी तरीका हो सकता है कि आप एक आदमी की उसकी सामान्य जिंदगी उसको वापस लौटा सके? तो मैं कहूंगा हाँ, हो सकता है। सामान्य जिंदगी से मेरा अभिप्राय, एक आदमी अस्थमा होने से पहले एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, जैसे मैं जी रहा हूं आज, लेकिन यदि मुझे अस्थमा हो जाए तो क्या मैं वापस अपनी पूर्व स्थिति को पा सकता हूं? एक बार मुझे बीपी फ्लक्चुएट हुआ और मुझे ये घोषित कर दिया गया कि ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है और ये कभी नॉर्मल नहीं हो सकता, तो क्या मैं अपनी पूर्व स्थिति को वापस पा सकता हूं? अभी मुझे एक बार T3, T4, TSS का इम्बैलेंस हुआ, तो मैं क्या अपनी पूर्व स्थिति को पा सकता हूं? एक बार मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, मुझे स्क्लेरोडर्मा हो गया, या लिकोडर्मा या एक्जिमा हो गया, तो क्या मैं अपनी पूर्व स्थिति को पा सकता हूं? ऐसे ही बहुत से प्रश्न हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले कहेंगे कि आप यदि कुछ मेडिकेशन लेंगे तो आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपने हेल्थ को, लेकिन आप पहले जैसी अपनी खोई हुई जिंदगी को वापस नहीं पा सकते। अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन यदि मैं ये कहूं कि आप अपनी पूर्व स्थिति को पा सकते हैं, क्योंकि शायद
ये शब्द कहना मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं क्योर शब्द बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। What Swamiji basically said is that with all these most modern medicines we have and all the technological advances we have in medicine, once a person gets a cancer or hypertension or arthritis or scleroderma, there are hardly anything that can revert these conditions back to a position where you were before you got these illnesses. That is basically what Swamiji is emphasizing, the fact that modern medicine has come a long way in terms of managing these medical problems, in terms of controlling symptoms, in terms of decreasing the rate of progression of these diseases, but certainly we can never revert back to someone who had an asthma back to a normal person. Certainly you cannot totally eliminate a cancer, at least not in most cases, and turn that person into a normal person. So in a sense, Swamiji is leading us to a point where he is emphasizing that there are certain other aspects which can make a major difference in terms of, one, preventing us from getting into these problems to begin with. एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैंने जो काम किया है अभी, मेरे पास में कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। स्ट्रेस के ऊपर मैंने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया और वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम मैंने ये पाया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, ऐसे मुख्य 8 प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी। इन 8 प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मैंने कुछ प्रयोग किए। उसमें क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए एक चीज पर किया कि ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है, अर्थात स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसमें क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल पर मैंने फाउंड आउट किया कि जो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो प्राणायाम के करने से डाउन आ जाते हैं, नो बिल्कुल एकदम बिलो नॉर्मल आ जाते हैं विद इन 9 डेज। ये मैंने फर्स्ट जब ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया तो पतंजलि योगपीठ और एससीपीजीआई लखनऊ, तो वहां के डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर गौड़ बोले बाबा जी कुछ ज्यादा पैसे हो रहे हैं क्या? मैंने कहा क्यों? बोले किसी की 7-9 दिन में किसी के हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स कोई कम हो सकते हैं? मैंने कहा आप प्रयोग करके देख लीजिए, हो जाए तो दिक्कत क्या है। 9 दिन के अंदर ये देखा गया, उसकी पूरी स्टडी भी मैंने अपनी इस बुक के अंदर दी है, योग इन सिनर्जी विद मेडिकल साइंस, कि 9 दिन के अंदर वो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस जो स्ट्रेस हार्मोन्स थे वो कम हो गए और बीटा एंडोर्फिन जो गुड हार्मोन था वो बढ़ गया। एक पहला क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल था। फिर मैंने साइंटिफिक एविडेंसेस इकट्ठे किए, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन किया योग का, और सबसे बड़ी बात यह थी कि कुछ मैंने साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन किया, कुछ मैंने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए, कुछ मैंने खाली योग के प्री और पोस्ट टेस्ट किए पेशेंट्स के ऊपर, लाइक हीमोग्लोबिन पर, कोलेस्ट्रॉल पर, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, जो है ईसीजी, पीएफटी, ये प्री और पोस्ट टेस्ट किए। उससे भी 10,000 पेशेंट्स का डेटा मैंने इसके अंदर दिया है। फिजिकली करीब मेरे पास 2 करोड़ लोग आए, मैंने उनको ये 90% में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराता हूं, 10% दूसरे फिजिकल पोस्चर्स, क्योंकि फिजिकल पोस्चर्स हमारी बॉडी को नॉर्मल शेप में रखते हैं और उससे हमारा बॉडी का, मैं कहता हूं कि हार्डवेयर अच्छा रहता है, सॉफ्टवेयर ठीक नहीं होता है। तो 2 करोड़ लोगों के ऊपर मैंने